ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ تم کیسی بیٹی ہو؟ اپنے باپ کو مرتے دیکھ کر بھی تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ میں سوتیلی ماں ہوں، لیکن یہ باپ ہے، باپ جو یہاں پڑا ہوا ہے وہ سگا ہے نا؟ ایک عورت چیختے ہوئے ایک کم عمر لڑکی سے پوچھ رہی تھی۔ وہ لڑکی سر جھکائے روتے ہوئے اپنے باپ کو اسپتال کے بیڈ کے بجائے گھر کی چارپائی پر پڑے دیکھ کر اداس نظروں سے دیکھتی ہوئی رو رہی تھی۔ اس کے باپ کو فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے ایک دن رکھ کر چھٹی دے دی تھی، لیکن اب ان کا اسپتال میں باقاعدہ ایڈمٹ ہونا بہت ضروری تھا۔ وہ لاچار نظروں سے اپنی سوتیلی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے ایسے کیا دیکھ رہی ہے؟ جا باہر نکل اور کما کر اپنے باپ کا علاج کروا۔ ایسا نہ ہو میں تیرے باپ کو یہاں چھوڑ کر چلی جاؤں، وہ اسے دھمکی دیتی ہوئی بولی۔ البتہ اس عورت نے صاف ستھرے کپڑے پہن رکھے تھے۔ انایا کے کپڑے 3 دن پرانے میلے کچیلے تھے۔ اپنے باپ اور گھر کی دیکھ بھال کے دوران اسے یاد ہی نہیں رہتا تھا کہ وہ نہا دھو کر کپڑے ہی تبدیل کر لے۔ ابھی تک کھڑی ہے؟ ایسی جوان لڑکی اور اوپر سے خوبصورت بھی ہو، لوگ ہاتھوں ہاتھ جاب پر رکھتے ہیں۔ وہ اسے تیکھی نظروں سے گھورتے ہوئے بولی۔ انایا نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ میں اپنی عزت نیلام نہیں کر سکتی، وہ مدھم آواز میں بولی۔ باپ سے بڑھ کر بیٹیوں کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر تم اپنے باپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تو تم بیٹی کہلانے کے لائق ہی نہیں ہو، وہ نفرت سے کہتی انایا کو ٹہوکا دیتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ اس کے بابا روتے ہوئے کچھ کہنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کچھ وقت پہلے کی بات تھی جب وہ عورت اس کی سوتیلی ماں بن کر آئی تھی اور بات بات پر اس کے باپ سے اسے پٹواتی تھی۔ آج وہی باپ اسے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، لیکن اسے اپنے بے بس باپ کی زندگی کی فکر تھی۔ مزید اسے کسی محبت اور اپنائیت کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ وہ کمرے میں آئی، کافی دیر روتی رہی، پھر نہا دھو کر کپڑے تبدیل کیے اور چادر پہنے اپنی سی وی کی فائل اٹھائی اور کمرے سے نکل گئی۔ اس کی سوتیلی ماں نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ باپ کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کا باپ اشارے سے اسے جانے سے روک رہا تھا، لیکن انایا نے اب ٹھان لی تھی اپنے باپ کا وہ اچھے سے علاج کروائے گی۔ ماہرہ، ماہرہ، سائم گردیزی آواز لگاتے غصے سے دھاڑ رہا تھا۔ اس کا غصہ شدت اختیار کرنے لگا تھا، لیکن اس کی نوکرانی کانوں میں تیل ڈالے بیٹھی تھی۔ کہاں مر گئی تھی؟ یہ کب سے رو رہا ہے، اسے کون سنبھالے گا؟ میں نے کہا تھا اس سے 1 منٹ کے لیے بھی غافل نہیں ہونا۔ وہ چیختے ہوئے شدید غصے کی حالت میں اس پر دھاڑ رہا تھا۔ نوکرانی نے تعصب سے اسے دیکھا۔ آپ اپنی بیوی کے بھاگ جانے کا بدلہ سب سے لیں گے؟ اس کی کینچی کی طرح چلتی زبان پر سائم مٹھی بھینچ گیا۔ وہ اس گھر میں 10 سالوں سے کام کر رہی تھی اور سائم کے غصے سے بھی خوب واقف تھی، لیکن اسے جو کہنا ہوتا اس کے منہ پر کہتی۔ میری بیوی کا نام بھی مت لو، وہ دوبارہ سانپ کی طرح پھنکارا جب اس کا 1 مہینے کا بیٹا چیخ چیخ کر رونے لگا۔ کل ہی اس کی زندگی کی سیاہ ترین رات تھی جب اس کی بیوی ایک خط لکھ کر وہاں سے چلی گئی تھی اور سائم گردیزی کی زندگی سیاہ کر گئی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ روڈ اور سفاک ہو گیا تھا۔ اسے بچے کو سنبھالنے کا کوئی تجربہ بھی نہیں تھا، اور ابھی دائم تھا بھی اتنا چھوٹا کہ اسے باپ سے زیادہ ماں کی ضرورت تھی۔ نام کہاں لیا ہے صاحب جی؟ بس حقیقت بتائی ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کو دیکھیں۔ ماں باپ کے علاوہ بچوں کا کوئی سگا نہیں ہوتا۔ وہ دوبارہ سائم پر شروع ہو چکی تھی جب سائم نے دائم کو پروم میں ڈالا اور اس پر تیز نگاہ ڈال کر تن فن کرتا باہر کی جانب لمبے ڈگ بھرتا نکل گیا۔ بیوی ان کی بھاگی ہے، غصہ ہم برداشت کریں، مفت کا سمجھا ہے کیا؟ وہ کہتی ہوئی کچن کی جانب چلی گئی، جبکہ گارڈ نے اس کے لیے دروازہ کھولا اور وہ دائم کا پروم بیک سیٹ پر رکھ کر خود فرنٹ سیٹ پر آیا اور گاڑی کی سپیڈ آہستہ کیے وہ گاڑی چلاتے ہوئے دائم کو بھی دیکھ رہا تھا۔ وہ غصے میں دائم کا کوئی ضروری سامان اٹھا کر نہیں لایا تھا۔ اسے اس بات کا احساس ہونے والا تھا۔ وہ آفس آیا تو سب نے حیرت سے پریم کو دیکھا۔ سب جانتے تھے وہ شادی شدہ ہے اور ایک بچے کا باپ بھی بن چکا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا تھا اس بچے کا باپ اب بس باپ ہی بچا ہے، ماں اسے چھوڑ کر کہیں بھاگ گئی ہے۔ وہ رونے لگا۔
साइम ने उसे बाहर निकालकर कंधे से लगा लिया। सेक्रेटरी ने गला खंगारा। सर, इसे भूख लग रही है, उसने डरते डरते बताया, कहीं साइम गुस्सा ना हो जाए। फीडर और बाकी चीजों का इंतजाम करो, मैं लाना भूल गया, वो सर्द लहजे में कहता वापस दाइम की जाने मुतवज्जो हो गया, जबकि वो लड़की सर हिलाती हुई दाइम के लिए सामान का इंतजाम करने भागी। कुछ ही देर में वो करीबी मॉल से सब कुछ ले आई थी और अब दाइम के लिए फीडर तैयार किए उसे पिलाने की कोशिश कर रही थी। वो चीखते हुए रोता था मगर फीडर मुंह में नहीं डालता था। वो ऐसे रो रहा था कि चेहरा लाल टमाटर हो गया और उसका वजूद थरथराने लगा। साइम ने उसकी हालत के पेश नजर डॉक्टर को कॉल मिलाई। सारे वर्कर्स एक के बाद एक उसे गोद में लेते और चुप कराने की कोशिश करते हुए हलकान हो गए। उसे कभी कोई करतब दिखाते, लेकिन दाइम चुप होने की बजाय गला फाड़ कर रोने लगता। सब हैरान थे, वो इतना छोटा सा था लेकिन रोता था तो दिल दहला देता था। डॉक्टर ने उसे नींद का सिरप पिलाया। वो सो गया तो सबकी जान में जान आई। इस बच्चे की मां कहाँ है? इसे मां की जरूरत है, बच्चा मां को ढूंढ रहा है, डॉक्टर ने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरते बताया। साइम ने लब भींच लिए। सारा स्टाफ साइम गर्देजी को देखने लगा। उन्हें मामला अभी तक समझ नहीं आया था। आखिर दाइम अपनी मां के बिना ऑफिस में क्या कर रहा था? इसकी मां नहीं है। साइम के लब हिले और सबको साकित कर गए। उन दोनों की मोहब्बत की शादी थी और दोनों इतनी शिद्दत से एक दूसरे को चाहते थे, उनका दूर होना मुमकिन ही नहीं था। फिर दाइम की मां कहां चली गई थी? फिर आप कोशिश करें कि यह आपसे अटैच हो जाए ताकि फिर इसे किसी की जरूरत ही ना पड़े, डॉक्टर ने मशवरा दिया और वहां से चले गए। लेकिन दाइम जब जब उठता इतना रोता कि साइम का जीना हराम कर देता। वो फीडर में नींद के सिरप का एक ड्रॉप डाल कर देता, फिर वो घंटों तक सोता। साइम ने यही अमल घर आने के बाद भी जारी रखा था, लेकिन भूख लगने के सबब दाइम रात में 10 बार उठता था। साइम उसके पैम्पर तक चेंज करवा रहा था और कोफ्त का शिकार था। उसने दूसरे दिन एजेंसी कॉल करके नैनी रखवा ली थी, लेकिन दाइम उसे भी बर्दाश्त करने का कायल नहीं था। रोता चीखता उसे भगाने के दर पे था। एक माह में साइम काफी केयर टेकर चेंज कर चुका था। वो ऑफिस में नैनी और दाइम को साथ ले जाता था ताकि घर में वो उसे किसी किस्म की तकलीफ ना दे सके या अगवा करने का उसे कोई खतरा ना हो। वो जिस कमरे में थी वहां उसने बिना बताए कैमरे लगाए हुए थे। उस केयर टेकर से भी दाइम संभाला नहीं जा रहा था। यूं लगता था वो जानबूझकर साइम को सता रहा था। शायद उसकी मां उसे कुछ पट्टी पढ़ा कर गई थी। साइम अपने काम पर भी ठीक तरह से तवज्जो नहीं दे पा रहा था, क्योंकि उसकी नींद पूरी होती थी तो वो बेफिक्र जहन लेकर कोई काम कर पा रहा था। वो मजीद गुस्से का तेज होता जा रहा था और वर्कर्स की शामत आई होती थी। आज मीटिंग है सर, आप इस मीटिंग को 4 बार रीशेड्यूल करवा चुके हैं, अब पार्टी भी नाराज हो रही है, सेक्रेटरी ने साइम को कहते उसके बिखरे हुलिये की जानिब तवज्जो दी और तरहम भरी नजरों से उसे देखा। कैंसल कर दो, मुझे कोई मीटिंग नहीं करनी। वो इस कदर परेशान था कि उसकी फर्म अब घाटे में जा रही थी। सर, हम मुसलसल लॉस में जा रहे हैं, ये हमारे लिए जरूरी डील है, सेक्रेटरी ने जल्दी से उसे समझाने की कोशिश की। बॉस मैं हूं या तुम? उसकी सर्द आवाज में पूछे जाने वाले सवाल को सुनकर इसका दिल सहम गया। वो सर कहती हुई वहां से 9-2-11 हो गई। कहीं साइम गर्देजी के अताब का शिकार ना हो जाती। दाइम कैमरे से उसे नजर आ रहा था और केयर टेकर की बेजार शक्ल देखकर वो मजीद सेखपा हो गया और तन फन करता उसकी अकल ठिकाने की गर्ज से बाहर आया। जहां एक चादर में लिपटी लड़की साइम के रूम में जाने की जिद करते गार्ड से इल्तिजा कर रही थी। वो बच्चा अंदर रो रहा है और आपको बॉस की फिक्र है। बॉस का अपना बच्चा होता ना, फिर उनके दिल को इस बच्चे के रोने की आवाज चीरती। वो बच्चा ना जाने किस परेशानी में है, एक बार मुझे देख तो लेने दें। वो चादर वाली लड़की बिना ये जाने जिसका बच्चा है वो खुद बॉस है और वही खड़ा सब सुन रहा है। गार्ड ने बॉस को देखा। साइम ने आंखों में उसे अंदर जाने की इजाजत दे दी। गार्ड एक तरफ हुआ, अनाया ने उसे घूरा और अंदर दाखिल हो गई। केयर टेकर उसे उल्टा सीधा गोद में लिए चुप करवा रही थी।
बच्चे को ऐसे गोद में लेते हैं? अनाया ने हैरत से उससे इस्तफसार किया। मैं केयर टेकर हूं, मुझे इल्म है कैसे लेते हैं। उसकी बात सुनकर अनाया ने दाइम को उसके हाथ से लिया। उसका सर अपने कंधे से लगाते हौले से कमर पर हाथ थपके कमरे का चक्कर लगाने लगी। साइम सीसीटीवी कैमरे से लाइव देख रहा था। वो लड़की बड़ी महारत से उसके रोते बच्चे को चुप करवा चुकी थी। स्ट्रेंज, साइम के लब हिले। बच्चों को फीड करवाने के बाद थोड़ा खेलने की जरूरत होती है। ये अभी छोटा है, इसलिए ऐसे खाना हजम किया जाता है। मैंने अपने मोहल्ले के बच्चे पाले हैं, इसीलिए तजर्बा है। मेरी अम्मी मुझे सिखाती थी कि कैसे बच्चों को पालते हैं। साइम दरवाजे पर खड़ा उसकी गुफ्तगू सुन रहा था। वो काफी देर बाद कमरे से बाहर निकली। इस चादर वाली लड़की को अंदर भेजो। साइम की कॉल सुनकर रिसेप्शनिस्ट हैरत से उस लड़की को जाते देखने लगी। सर, इस लड़की की सीवी हमारी फर्म के लायक नहीं है, ना ही इसे कोई तजर्बा है। उसकी बात साइम ने काट दी। जितना कहा है इतना करो, शाजिया उसे अंदर भेजो। उसकी गरजदार आवाज सुनकर वो गड़बड़ाई और फिर यस कहकर उसे बॉस के ऑफिस में भेज दिया। मिस, वो साइम को सामने देखकर हैरान हुई। अमूमन फर्म में इंटरव्यूज बॉस नहीं लेते थे। मिस अनाया, वो पजल होती सर पर चादर दुरुस्त करने लगी। साइम ने सर ता पैर उसे देखा। वो बहुत ही मामूली घर की लड़की थी। आम सा लिबास और चेहरे पर कोई मेकअप नाम की चीज नहीं थी। वो उसके चुप रहने पर सर उठाती देखने लगी। जब साइम को खुद को देखता हुआ पाकर वो नजरें झुका गई। मैं लगी लिपटी बात कहने का आदी नहीं हूं। तुम्हारी सीवी हमारी फर्म के लायक नहीं है और ना ही तुम्हें कोई तजर्बा है। हम यहाँ बेहतर से बेहतर वर्कर लाते हैं, सो मैं तुम्हें अपनी फर्म में जॉब नहीं दे सकता। उसकी बात सुनकर अनाया ने गर्दन हिलाई और वापस दरवाजे की जानिब मुड़कर जाने लगी। 1 महीने से ख्वारी उसका मुकद्दर बन गई थी। वो जितनी भी जगह गई थी, सब जगह उसकी तालीम को नामुकम्मल कहा गया था, साथ ही तजर्बा भी मांगा था। वो घर से बाहर पहली बार निकली थी और तालीम उसने सिर्फ FA तक कर रखी थी। लेकिन तुम मेरे काम आ सकती हो। साइम की बात सुनकर वो चौंक कर पलटी। इसकी मां के अल्फाज कानों में गूंजने लगे। उस औरत ने कहा था, खूबसूरत लड़कियां जॉब हासिल कर लेती हैं। अनाया नफी में सर हिलाती खुद को छुपाने की कोशिश करने लगी। साइम के लब मुस्कुराहट में ढले। उसे इस लड़की की अदा पसंद आई थी। क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं? साइम की आवाज पर वो दोबारा चौंकी थी। वो मैं ऐसी लड़की नहीं हूं। वो साइम की बात करने से पहले सफाई पेश कर रही थी। मैंने अभी वजह ही नहीं बताई, तुम पहले से मुझे कैसे समझ सकती हो? बैठ जाओ, दाइम के हवाले से कुछ बात करनी है। वो संजीदगी से बोलने लगा। दाइम लफ्ज पर उसने सवालिया नजरें उसकी जानिब की थी। जिससे अभी तुम मिलकर आ रही हो, वो मेरा 2 माह का बेटा है। उसकी बात सुनकर अनाया को उस पर शदीद गुस्सा आया। कैसे अपने रोते बिलखते बच्चे को चुप करवाने की बजाय उसका बाप ऑफिस में मजे से बैठा था। इसकी जिम्मेदारी केयर टेकर पर छोड़ दी थी। उसकी मां उसे छोड़कर चली गई है और मैं चाहता हूं मिस अनाया, तुम मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लो। उसकी बात सुनकर अनाया झटके से उठी थी। मैं उस बच्चे की केयर टेकर बन सकती हूँ, मैरिज की क्या जरूरत है? उसने हैरानगी से अपने सामने खड़े उस खूबरू मर्द को देखा था। दिन रात मैं तुम्हें दाइम के साथ देखना चाहता हूं। क्या तुम मेरे घर बिना किसी रिश्ते के रह सकती हो? तुम जिस क्लास से ताल्लुक रखती हो वहां अमूमन इन सबको अच्छा नहीं समझा जाता। और जैसे ही मेरी बीवी वापस आएगी मैं ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगा और ये मैरिज सिर्फ दाइम के लिए होगी। वो कंधे उचकाकर कितने आराम से उसे ऑफर कर रहा था। मुझे यकीन है तुम्हारा कोई जाती मसला है जो तुम्हें जॉब करने पर मजबूर कर रहा है, वरना तुम यहां अपनी मर्जी और खुशी से नहीं आई हो। उसका लोगों को पहचानने में खासा तजर्बा था। अनाया की नजरों के गिर्द उसके बाप का लागर वजूद घूम गया। लेकिन मेरी एक शर्त है, अनाया ने हिम्मत करते कहा। साइम के कंधे हल्के से हुए थे। इस कमजोर सी लड़की की शर्त भी कमजोर सी ही होगी। मेरे बाबा का इलाज पहले करवाएंगे ताकि मैं आप पर यकीन कर सकूं कि आप झूठ नहीं बोल रहे, और दूसरा मैं पुलिस में रिकॉर्ड भी कराऊंगी
कहीं आप मुझे धोखे से स्मगल ना कर दें। और तीसरी बात यह कि आप मुझसे कोई ऐसी फरमाइश नहीं करेंगे जो उस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट ना रहने दे। वो उसकी तमाम बात सुनकर समझ भी गया था। इत्मीनान रखो, मैं अपनी पहली बीवी की मोहब्बत में गर्क इंसान हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ दाइम की फिक्र है और तुम जो चाहे अपनी सेफ्टी के लिए कर सकती हो। अपने घर का एड्रेस दो, तुम्हारे अब्बा जी को अस्पताल दाखिल करवा देते हैं। उसकी बात सुनकर अनाया को ये घाटे का सौदा नहीं लगा था और फिर अनाया के सब काम हो जाने के बाद उसने अपनी सौतेली माँ और बाप की मौजूदगी में साइम से निकाह किया था। उन दोनों के अलावा कोई नहीं जानता था ये निकाह महज एक कॉन्ट्रैक्ट पर मबनी है। अनाया के अकाउंट में एक बड़ी अमाउंट पहुंच चुकी थी। मजीद उसके बाप का बहुत अच्छे अस्पताल में इलाज हो रहा था। वो अपने बाप की फिक्र से आज़ाद हो चुकी थी। उसे बस अब अपने वादे का पास रखना था। उसके माँ बाप अस्पताल थे। अनाया को घर की कोई फिक्र लाहक नहीं थी। वो रात को जब ड्राइवर के साथ साइम के घर पहुंची, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो एक बंगला था जहां वो आदमी बड़ी शानो शौकत की जिंदगी अकेले गुजार रहा था। उसे अचानक साइम से हसद महसूस होने लगा। वो कितनी परेशान कुन जिंदगी गुजार रही थी और वो कैसी अयाश भरी जिंदगी अकेले फिक्रों से आजाद गुजार रहा था। अनाया घर में दाखिल हुई। उसकी आंखें हर एक शय को हैरानगी से देख रही थी। साइम गर्देजी सीढ़ियों के ऊपर खड़ा उसे बड़े गौर से देख रहा था। अगर घर को देख लिया हो तो जिस काम के लिए आई हो उसे भी देख लो। मेरा बच्चा रो रो कर बेजार आ चुका है। उसकी बात सुनकर वो चौंकी और फिर ऊपर की जानिब निगाह उठाकर उसे देखा। वो आंखों में शोले लिए इसे तक रहा था। वो जल्दी से चादर दुरुस्त करती ऊपर की जानिब आई जहां वो खड़ा इसका मुंतजिर था। किस कमरे में है दाइम? वो पूछते हुए लाइन से बने इतने सारे कमरे देखते सोचने लगी, कौन सा कमरा उसका होगा? इस कमरे में है दाइम, और वही तुम्हारा कमरा है। मेरा ये वाला कमरा है। उसने हाथ के इशारों से दोनों का कमरा बताया तो वो सर हिलाने लगी। दाइम के कमरे में ही अपना सामान सेट कर लेना। वहां एक एक्स्ट्रा अलमारी है और किंग साइज बेड भी डलवा चुका हूं। किसी चीज की जरूरत हो माहिरा को कह देना। वो जल्दी जल्दी बोलकर वहां से जाना चाहता था जब अनाया ने पूछा, आपकी बीवी आपको छोड़कर क्यों गई है? उसकी बात सुनकर इसके जबड़े भेंच गए। हाथों की नसें नुमायां होने लगी। तुम अपने काम से काम रखो और मेरी जाती जिंदगी में दखल अंदाजी करने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं। वो सख्ती से उसे बावर कराते वहां से चला गया। अनाया को उसके जाने के बाद सांस आता महसूस हुआ। जब वो बोलता था सांस रोक देता था। इसकी सख्त नजरें अनाया को हिला देती थी। वो लंबी सांस लेती खुद को दाइम की मां के तौर पर तैयार करती कमरे में दाखिल हुई। वो मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए अनाया को देख रहा था। अनाया, ओ मेला बेबी कहती हुई उसे गोद में लेकर बैठ गई। कमरा इतना आरामदेह था कि अनाया समेत दाइम पल में सो चुके थे। जबकि साइम उन दोनों को देखने जब कमरे में आया तो हैरत ज़दा रह गया। आज दाइम बिना नींद की दवा के उसके साथ चिपका हुआ सो रहा था। उसने अनाया की जगह अपनी बीवी को इस खूबसूरत मंजर में देखा। उसकी आंखें नम हुईं और होंठ मुस्कुराहट में ढले, लेकिन होश की दुनिया में आते ही वो सर झटक कर खुद को सरजनिश कर रहा था। वो अनाया को कैसे सबा तसव्वुर कर सकता था? उसे अपने ऊपर शदीद गुस्सा आया। वो वहां से अपने कमरे में आ गया और फिर सोने की कोशिश करते करते वो वाकई सो भी गया। दूसरी सुबह अनाया नाश्ते की मेज पर मौजूद नहीं थी। साइम अकेला बैठा कोफ्त से बार बार घड़ी देख रहा था। माहिरा, तुमने अनाया को नाश्ते का नहीं बताया? साइम की आवाज सुनकर माहिरा करीब आई। साहब जी, वो आपकी बीवी है, मैं क्यों नाश्ता वगैरह का वक्त बताने लगी? जब आप कमरे से आए थे उन्हें भी साथ ले आते। साइम माहिरा की चलती जबान देकर सर हाथों में गिराकर रह गया। अगर वो उसकी मां के दौर से वहां नौकरानी ना होती तो जरूर वो उन्हें फायर कर चुका होता। उसे वैसे भी उनके रिश्ते की नौयत कायल नहीं था। अच्छा था ना ही हो, वरना इस इलाके का एक घर ऐसा ना होता जहां साइम की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का चर्चा ना होता। अनाया, पहली दफा साइम ने उसका नाम लिया था।
وہ نہا دھو کر دائم کو بھی تیار کیے باہر آ رہی تھی جب وہ وہاں چلا آیا۔ جی میں آ ہی رہی تھی۔ 2 ماہ کا دائم پہلی دفعہ خوش دکھائی دیا تھا۔ سائم نے اسے اتنا خوش تو اپنی سگی ماں کے ساتھ بھی نہیں دیکھا تھا۔ ماہرہ کو معلوم نہ ہو کہ ہم الگ الگ کمرے میں رہتے ہیں، یوں ہی شو کرنا ہم میاں بیوی ہیں، وہ عنایا کا کندھا تھپک کر کہہ رہا تھا۔ نیچے ماہرہ کھڑی دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں سیڑھیاں اترنے لگے۔ مجھے لگا تھا صاحب جی صبا بیگم کے غم میں پاگل ہو جائیں گے، لیکن یہاں تو 1 ماہ نہیں گزرا دوسری شادی کر لی۔ واقعی مرد عورت کے بنا نہیں رہ سکتا، ماہرہ کانوں کو ہاتھ لگاتے بولی۔ عنایا کو ہنسی آئی جبکہ سائم کا غصہ ضبط کرنے کے چکر میں چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ دائم کو گود میں بٹھائے اسے فیڈر پلاتی خود بھی ناشتہ کر رہی تھی۔ سائم دائم کو دیکھتا ناشتہ کر رہا تھا، پھر اچانک جھک کر دائم کو پیار کرتے جانے لگا۔ ماہرہ کی نظروں سے پریشان ہوتا پلٹا اور جھک کر عنایا کے کان میں سرگوشی کی۔ ماہرہ دیکھ رہی ہے، مسکراؤ۔ وہ اس کی سنجیدہ ہو جانے اور دور کرنے سے پہلے پہلے بولا۔ وہ مسکرانے لگی۔ ماہرہ نفی میں سر ہلاتی توبہ توبہ کرتی چلی گئی۔ یہ خاتون 12 آنکھیں رکھتی ہیں، ان سے احتیاط کرنا، وہ سرگوشی کے سے انداز میں کہتا دائم کو ایک بار پھر چومنے لگا۔ اس کے جانے کے بعد عنایا نے ہسپتال کال کر کے ابا کی خیریت دی۔ اس کی سوتیلی ماں سائم گردیزی کی تعریفیں کرتے نہیں تھک رہی تھی۔ عنایا کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ کال بند کرتے دائم کی جانب متوجہ ہو گئی۔ وہ اسے ہمیشہ مسکراتے ہوئے دیکھتا تھا اور عنایا کو اس پر بے تحاشا پیار آتا۔ وہ کچھ ہی دنوں میں اس سے اتنا اٹیچ ہو گیا تھا کہ اسے 5 منٹ کے لیے آنکھوں سے اوجھل نہیں کرتا تھا۔ سائم کی گود میں 5 منٹ گزارنے کے بعد اسے عنایا کی گود میں جانا ہوتا تھا۔ اگر عنایا کو شاور لینے جانا ہوتا، پہلے وہ سائم کو اسے خیال رکھنے کا کہتی تھی، پھر فٹافٹ اس کے رونے کی آواز سن کر آتی تھی۔ سائم خود بھی دائم کی حرکتیں دیکھتا حیرت زدہ تھا۔ چند ہی دنوں میں وہ اس سے اتنا کیسے ہل سکتا تھا، جبکہ اس نے پیدا ہونے سے پہلے اس کا خیال رکھا تھا، اس کے ساتھ رہا تھا۔ عنایا، تمہاری کزن کی شادی ہے، تمہیں لازمی بلایا ہے تاکہ تمہارے شوہر کو دیکھ سکیں۔ سب میں مشہور ہو گیا ہے تم کسی امیر زادے کے ساتھ بھاگ گئی۔ اس تقریب میں شامل ہو کر سب کے منہ بند کر دو اور بتا دینا بچہ اس کی پہلی بیوی کا ہے۔ لوگ اس کی شخصیت سے متاثر ہو کر پہلی دوسری بیوی کہاں یاد رکھیں گے، اور بہت خوبصورت ڈریسنگ کر کے آنا کہ سب کی آنکھیں چندے آ جائیں۔ اس کی سوتیلی ماں عنایا کو کال کیے بول رہی تھی۔ عنایا کو بھی پورے خاندان کو جواب دینا تھا، اس لیے جانا ضروری تھا۔ سائم سے بات کرنے وہ اس کے کمرے میں آئی جہاں وہ نہا کر نکلا تھا۔ اس کے اچانک آ جانے پر ابرو اٹھائے اسے دیکھنے لگا۔ میرے خاندان کی ایک شادی میں میاں بیوی کی طرح شامل ہونا ہے ہمیں، اس نے انگلیاں مروڑتے ہوئے کہا۔ تمہیں معلوم ہے نا تم یہاں کس وجہ سے آئی ہو؟ وہ سرد نظروں سے دیکھتے اس سے پوچھ رہا تھا۔ جی معلوم ہے، وہ نظریں نیچے کیے بولی تو وہ اسے دیکھنے لگا۔ پھر مجھ پر بیوی والا روب جما کر ثابت کیا کرنا چاہتی ہو؟ مقابل نے سختی سے دانت کچھ کچاتے سوال کیا۔ میں کچھ ثابت نہیں کرنا چاہتی اور آپ پر نہ ہی اپنا حق جتانا چاہتی ہوں، لیکن دنیا کو دکھانا ہے کہ میں آپ کے ساتھ خوش ہوں، مطمئن ہوں۔ آپ کی بیوی ہوں نا کہ آپ کے ساتھ بھاگ کر آئی ہوں؟ بے حیا لڑکی ہوں، وہ روندھی ہوئی آواز میں بولی۔ سائم تھوڑا دھیما پڑا۔ کب اور کتنے بجے جانا ہے؟ میسج کر دینا۔ فی الحال مجھے سونا ہے، تم جا سکتی ہو۔ اس کی بات سن کر وہ اسے ایک نظر دیکھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ کافی بوجھل سا محسوس ہو رہا تھا، یوں کہ بہت زیادہ پریشان ہو۔ عنایا اس سے پوچھ کر اس کے غصے کو مزید ہوا نہیں دینا چاہتی تھی، اسی لیے چپ رہی۔ اگلے دن وہ بہت خوبصورت سی تیار ہوئی۔ دائم کو بھی میچنگ کلر کا سوٹ پہنائے تیار کیا تھا۔ وہ کچھ دنوں میں ہی گولو مولو سا ہو گیا تھا۔ عنایا کی محنت نظر آ رہی تھی۔ وہ شادی میں تینوں پہنچے تو سب کی نگاہ نے ان کو سراہا۔ سب شوق سے عنایا کے بدلے تیور دیکھ رہے تھے۔ عنایا نے ایک جگہ سائم کا بازو بھی تھاما تھا جسے اس نے چھڑانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ آج لگ ہی اتنی پیاری رہی تھی کہ وہ جان مانگتی سائم بھول جاتا ان کے درمیان کیا رشتہ ہے۔ وہ واپس آئے، عنایا اور دائم اپنے کمرے میں جانے لگے۔
अनाया, साइम की आवाज सुनकर वो पलटी। थोड़ी देर दाइम को मेरे कमरे में ले आओ, मुझे खदशा है ये मुझे भूल जाएगा कि मैं इसका बाप हूं। अनाया ने उसकी जेलसी महसूस की थी। सर हिलाती हुई अपने कमरे में जाने की बजाय वहां चली गई। साइम कोट उतारे शर्ट के कफ कोहनियों तक फोल्ड किए कालीन पर बैठा था। अनाया ने दाइम को खिलौने देकर अपने साथ टेक लगाकर वहां बिठाया। अनाया को बार बार देखने का दिल कर रहा था, लेकिन वो उसकी जाने मुतवज्जो नहीं थी। अपने कान में झूलती हुई बालियां निकालने की जाने मुतवज्जो थी। गले से नाजुक सा हार निकाल लिया, चूड़ियां भी उतारकर मेज पर रख दी, कहीं दाइम अपने हाथ में ना ले ले। खुले बालों को जूड़े में कैद किए वो थोड़ी रिलैक्स हुई थी। बस अब ड्रेस चेंज करना और मेकअप हटाना रह गया था। आप 2 मिनट दाइम को पकड़ें, मैं मुंह धोकर आती हूँ। वो उठकर उसकी जानिब देखे बिना बोली। वो टिकटिकी बांधे उसे ही देख रहा था। जब वो वापस आई, साइम और दाइम दोनों खिलखिलाकर हंस रहे थे। वो मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर निकल आई। उन दोनों को वक्त गुजारना चाहिए था और फिर अनाया की जगह उसकी सगी मां को आना था। अनाया का दिल बैठने लगा ये सोचकर कि दाइम अपनी असल मां के पास चला जाएगा। वो रोती हुई सोई थी और उस रात दाइम के लाख परेशान करने के बावजूद साइम ने अनाया को आराम देना मुनासिब समझा। दूसरे दिन सुबह उसके बाबा ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। वो ड्राइवर के साथ अस्पताल चली गई और इतवार होने की वजह से साइम ने दाइम को अपने साथ तो रख लिया, लेकिन उसे संभालना मुश्किल हो गया था। हालांकि अनाया बता कर गई थी दाइम को कब कब किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो अचानक उसके रोने पर भूल गया उसे क्या चाहिए था। फीडर भी दे चुका था, फिर भी वो रो रहा था। उसने अनाया को कॉल की। दाइम रो रहा है। वो अपने बाप के साथ बैठी थी और मुस्कुराकर उनसे बातें कर रही थी। उनकी थेरेपी से सेहत अच्छी हो गई थी और वो बोलने के काबिल भी हो गए थे। डायपर चेंज करना होगा, वो वक्त देखते बोली। वो सुबह पहना कर आई थी, अब तक तो उसे चेंज हो जाना चाहिए था। मैं करूं? वो हैरानी से मोबाइल को घूरने लगा। फिर और कौन करेगा? उसने डायपर चेंज कर दिया। वो थोड़ी देर पुरसकून रहा, लेकिन फिर रोना शुरू हो गया। उसने दोबारा अनाया को कॉल की। वो दोबारा रो रहा है। वो परेशानी से माथा मसल रहा था। वीडियो कॉल करती हूँ। उसने वीडियो कॉल की तो दाइम रोते हुए हाथ आगे बढ़ाने लगा। यकीनन उसे अनाया की याद आ रही थी। साइम लंबी सांस भर कर रह गया। उसे बाप के साथ मजा नहीं आ रहा था। वो माँ माँ करते हुए उसे बुला रहा था। मैं अब चलती हूँ, उसने परेशानी से उठते हुए बाप से कहा। दाइम नहीं रुक रहा तुम्हारे बगैर? वो मुस्कुराकर पूछने लगे। जी अब्बा, रो रो कर हलकान कर लिया है खुद को। बस जल्द ही दोबारा आऊंगी। वो जल्दी से उन्हें कहती हुई भागकर गाड़ी में बैठी और बेसब्री से घर आने का इंतजार करने लगी। वो घर पहुंची तो दाइम हिचकियों से रो रहा था। साइम भी अलग हलकान हो रहा था। वो उस तेजी से भागी कि चादर और दुपट्टा बैक वक्त सर से फिसल कर गिरे थे। वो साइम से दाइम को झपट कर उसे चूमने लगी। उसकी गोद में जाते ही दाइम का रोना धोना बंद हो गया। साइम ने घर में मौजूद सर्वेंट्स को देखा और फिर उसकी चादर को। वो चादर उठाकर उसके सर और कंधे पर डाल गया, लेकिन अनाया उस जानिब मुतवज्जो नहीं थी। वो बस दाइम के रोने से ही आधी जान दे चुकी थी। साइम ने कभी उसके सर को दुपट्टे के बगैर दूसरों के सामने नहीं देखा था। अनाया ने पलटकर उसे देखा जो दोनों को देख रहा था। आपसे जब दाइम संभलता नहीं है तो इसकी जिम्मेदारी क्यों लेते हैं? वो पहली दफा उसे इस सर्द अंदाज में गोया हुई थी। मेरा बेटा है, वो माथे पर बल डाले जोर देकर बोला। आपका बेटा है मुझे मालूम है, लेकिन अगर आइंदा वो आपकी वजह से रोया तो अच्छा नहीं होगा। वो जिस कदर गुस्से में थी, मुमकिन था साइम से लड़ने लगती। साइम पहले गुस्सा हुआ, बाद में उसे अनाया का दाइम के लिए इस कदर फिक्रमंद होना अच्छा लगा था। दिन गुजरते जा रहे थे और अनाया साइम के दिल में रफ्ता रफ्ता उतरती जा रही थी। वो अब अनाया से बहुत अच्छे से बात करने की कोशिश करता था। आपकी बीवी का आने का इरादा नहीं लगता, वरना दाइम के लिए वो एक बार जरूर कॉल करती। अनाया ने डिनर टेबल पर उससे पूछा। उसे रह रहकर दाइम की मां से नफरत होती जा रही थी। इतने प्यारे बच्चे को कौन छोड़कर जाता है?
उसे भूल कर तुम दाइम पर ध्यान दो। इसका आना ना आना मेरे लिए जरूरी है। वो इस बात पर हमेशा सर्द हो जाता था। वो कंधे उचकाकर सर पर दुपट्टा ठीक कर रही थी। कल ऑफिस की जानिब से बिजनेस टूर पर जाना है। क्योंकि तुम मेरी बीवी हो इसलिए पैकिंग कर लेना। हम कल सुबह की फ्लाइट से फ्रांस जा रहे हैं। वो अगर उसकी हैरत से फटी आंखें देख लेता तो रुककर जरूर पूछता, क्या चीज हो? मैं? फ्रांस? वो खुद की जानिब इशारा करते पूछ रही थी। बीवी की हैसियत से लोग अब तुम्हें जानते हैं। मेरी बीवी पहली का मुझे नहीं पता। वो खुरदरे अंदाज से बोला। मतलब मेरा वीजा? वो हैरान ही तो हो रही थी। प्राइवेट जेट से जाएंगे। वो उसकी हैरान आंखों को बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। वो अपनी पहली बीवी का रोग भुलाने लगा था। वो उसी वक्त से अपना बैग तैयार कर रही थी, साथ दाइम का, और साइम का उसे मालूम नहीं था कि कैसा बैग तैयार करना है, इसलिए उसने कुछ भी ना किया। वो शाम में जब दाइम के कमरे में आया वहां बैग तैयार देकर परेशान हुआ। इतना सारा सामान कोई 2 दिन के टूर पर कैसे ले जाता है? वो अनाया को देखते पूछ रहा था, जो अभी शावर लेकर आई थी और गीले बालों को टॉवल से साफ कर रही थी। क्यों? वो कभी बैग्स को कभी उसको देखकर पूछ रही थी। मैं बताता हूं क्या क्या रखना है। वो बैग की जानिब बढ़ा। लड़कियों के सामान में नहीं घुसते, क्या आपको नहीं मालूम? वो जल्दी से बैग की जानिब जाते बोली। ओहो! वो ओ करते हुए पीछे हुआ। ड्रायर से बाल सुखा लो, ऐसे नहीं खुश्क होंगे। वो ड्रायर निकालकर उसे थमाने लगा। मुझे यूज करना नहीं आता, वो शर्मिंदगी से कहती वापस रखने लगी। मैं बताता हूं कैसे इस्तेमाल करना है। वो प्लग लगाकर बटन दबाकर उसके पास आया और बालों को हाथ में थामे उसके पीछे खड़ा बाल सुखाने लगा। अनाया शीशे में उसे देख रही थी। अचानक साइम ने अनाया का रुख अपनी जानिब किया और उसकी जानिब कदम उठाने लगा। वो पीछे होते होते दीवार से जा लगी, आंखें नीचे, सांस रोके खड़ी थी, जब अचानक उसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के साथ उसकी बीवी का इसकी जिंदगी में वापस लौट कर आना याद आया। उसके आने के बाद साइम और दाइम की जिंदगी में उसकी कोई जगह नहीं होगी। वो आंखें पट से खोले साइम को गुस्से से देखने लगी। आप शायद भूल रहे हैं कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। जैसे ही आपके बच्चे की असल माँ वापस आएगी आप मुझे छोड़ देंगे, इसलिए मुझसे दिल लगी करने की जरूरत नहीं। अनाया ने साइम गिरदेजी के हिसार से निकलते कहा। वो अनाया की बात सुनकर हाल में लौट आया था। उसने अनाया का हाथ थामा। उसके लौट आने के बाद भी तुम मेरी बीवी रहोगी। मैरिज मैरिज होती है, निकाह निकाह होता है। हमने पूरे एहतमाम से 3 बार कबूल किया था। वो उसकी आंखों में देखे बोला। लेकिन मैं खुद को सिर्फ और सिर्फ दाइम की चंद माह की मां समझती हूं और इससे आगे कुछ भी नहीं। लिहाजा आप मुझसे दूर रहें, यही हम दोनों के लिए बेहतर है। वो लफ्ज चबाते हुए उसे कहती हुई दाइम को उठाने कमरे से चली गई। साइम ने गुस्से से मुक्का दीवार पर मारा। सबा, एक बार तुम लौट आओ फिर देखना, वो गुस्से से फिंकारते हुए बोला। अनाया ने रात का खाना भी उसके साथ खाना मुनासिब नहीं समझा था। वो अपने कमरे में ही खाना ले आई थी। माहिरा काफी उम्र रसीदा थी, उनसे सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती थी और इस वजह से वो दोनों अब तक बचे हुए थे और उन्हें पता नहीं चल सका था अनाया दाइम के कमरे में सोती है। वो बिजनेस टूर पर आ तो गई थी लेकिन बहुत खफा थी। उसे रह रहकर खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसे साइम की जानिब मुतवज्जो होने की जरूरत क्या थी? वो अमीर है इसलिए मैं उसे सोचती हूं, उसने खुद को भौंडी तसल्ली देते कहा। वो उससे मोहब्बत में मुब्तला हो चुकी थी लेकिन खुद को उल्टी सीधी बातें समझाकर इग्नोर कर रही थी। अनाया ने आज साइम के कहने पर फुल ब्लैक मैक्सी पहनी हुई थी, सर पर कैप था, हाथों में ग्लव्स। वो किसी फिल्म की फीमेल मेन कैरेक्टर लग रही थी। पार्टी का थीम ब्लैक था, सभी काले रंग में रंगे हुए थे। सिर्फ अनाया थी जो सोबर कपड़ों में मलबूस थी, बाकी सबने इंतहा के बोल्ड कपड़े पहने थे। काफी लोगों ने इसकी तारीफ की थी। दाइम इस वक्त बेबी गेम रूम में था। वहां आए सारे बच्चे एक जगह जमा थे जहां उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखा जा रहा था। अनाया हाथों में सॉफ्ट ड्रिंक का ग्लास थामे मायूसी से दाइम को मिस कर रही थी। साइम एक्सक्यूज करता अनाया के पास आया। क्या हुआ,
मूड क्यों खराब है? वो उसे देखकर पूछने लगा। दाइम के पास जाना है। वो आंखों में नमी लिए उसकी जानिब नजरें उठाए बोली तो साइम को लगा उन आंखों में उसकी दुनिया ठहर सी गई है। ऐसे महसूसात पहली दफा क्यों रोनुमा हुए थे? मोहब्बत, शादी उसकी पहले भी हो चुकी थी। उसे अलग किस्म की उनसियत क्यों महसूस होती थी? वो सबा को कैसे भूलने लगा था? उन दोनों ने एक दुनिया से लड़कर शादी की थी, शदीद मोहब्बत की थी। फिर वो लड़की इसे सब कुछ भुलाकर सिर्फ इसे याद रखने पर कैसे मजबूर कर सकती थी? उसके बाजू हिलाने पर साइम होश में आया। मुझे दाइम चाहिए। जब आपकी बीवी आ जाए प्लीज मुझे दाइम दे दीजिएगा। अपनी बीवी के साथ आप खुश रहिएगा, मुझे बस दाइम चाहिए। वो रोने के दर पे थी। उसे फर्क नहीं पड़ता था वो इस महफिल में किस कदर हसीन लग रही है। उसके सामने खड़ा मर्द भी महफिल की जान लग रहा था, लेकिन अनाया को सिर्फ दाइम चाहिए था। साइम ने गहरी सांस हवा के सुपुर्द की और उसका हाथ थामे बेबी रूम में ले आया, जहां सारे बच्चे पेट के बल लेटे बॉल को एक दूसरे को देते चीख रहे थे। अनाया दाइम को खुश देखकर दरवाजे पर रुककर लबों पर मुस्कुराहट सजाए उसे देखने लगी। मुझे कभी यूं महसूस होता है दाइम मेरी सगी औलाद है, मैंने इसे जन्म दिया है। यूं लगता ही नहीं कि मैंने इसे महज पाला है, वो मुस्कुराते हुए बोली। साइम जाते जाते रुक गया और उसे देखने लगा। अगर कोई और लड़की होती उससे उसकी दौलत के लिए मोहब्बत करती या फिर उसके बच्चे के बहाने उसके करीब आने की कोशिश करती और फिर उसे ब्लैकमेल करके हमेशा उसकी जिंदगी में ठहर जाती। लेकिन वो गरीब ही सही लेकिन खुददार लड़की थी जो पूरी ईमानदारी से अपनी जॉब यानी दाइम की देखभाल कर रही थी। मैं तुम्हें कभी दाइम से जुदा नहीं करूंगा। उसने अनाया के कंधे के पीछे कान में सरगोशी की। अनाया हैरत से पलटी। आप सच कह रहे हैं? उसकी आंखों में जुगनू नाचने लगे। बिल्कुल, ये मेरा वादा है, वो मुस्कुरा कर बोला। अनाया हल्की फुल्की हो गई और साइम के साथ वापस पार्टी का हिस्सा बन गई। उन दोनों के दरमियान खलिश की दीवार एक बार फिर गिर चुकी थी। वो 2 दिन साथ रहे, अलग अलग जगह घूमते रहे। साइम उसे जगह के बारे में बता रहा था, वो सुनती रही। दाइम प्रेम में दोनों के साथ पुरसकून था। जब वापस आए सबसे पहले साइम ने अनाया का पासपोर्ट बनवाया ताकि उसे फिर दोबारा प्राइवेट जेट ना लेना न पड़े, वरना इतने भारी टैक्स से वो कंगला हो जाएगा। अनाया दाइम थक कर 2 दिन तक नींद पूरी करते रहे। एक साइम ही था जिसे टूर की आदत थी। वो बिना थके सारे काम कर रहा था और उन दोनों को अपने इर्द गिर्द ना पाकर बेचैन होता था। उन्हें आए 2 हफ्ते गुजर चुके थे और दोनों के दिल एक दूसरे की मोहब्बत में मुब्तला हो चुके थे। सिर्फ डर सबा के वापस आने का था और 2 हफ्ते बाद ही वो लौट आई थी। जब साइम ऑफिस में था और दाइम अनाया गार्डन में खेल रहे थे, कोई मॉडर्न सी लड़की सफेद गाड़ी से बाहर आई। हेलो, दाइम की केयर टेकर हो? वो खूबसूरत होने के साथ साथ कॉन्फिडेंट भी थी। नहीं, मैं इसकी माँ हूं। उसकी बात सुनकर सबा जोर से कहकहा लगाकर हंसी। माँ? वट? आर यू श्योर? सबा का चेहरा पल में बदला और उसने अनाया के करीब जाते उसका मुंह दबोच लिया। मैं इसकी माँ हूं, मैंने पैदा किया है इसे। बताओ कौन हो तुम? वो सख्ती से उसके बालों को पकड़े पूछ रही थी। मैंने और साइम ने निकाह किया है। मैं साइम की बीवी और दाइम की माँ हूं। जिस दिन के आने का वो सोचती थी अचानक वो दिन आ भी गया था। उसके सामने आती ही वो शेरनी बन गई थी। उसे दाइम की फिक्र थी। एक वक्त को वो अपनी मोहब्बत कुर्बान कर सकती थी, लेकिन वो दाइम पर अपनी ममता नहीं कुर्बान कर सकती थी। निकाह? माई फुट। मैं आज भी साइम की बीवी हूं। निकलो मेरे घर से। मैं कुछ दिन के लिए गायब क्या हुई, लड़कियों ने साइम और मेरे बच्चे को अपनी जागीर ही समझ लिया। निकल यहां से। वह अनाया को बालों से पकड़े बाहर निकाल रही थी। रुक जाओ सबा। साइम गर्देजी ने दूर से मंजर देखा तो चीख पड़ा। सबा को अचानक अपनी आंखों के सामने देखकर उसकी दुनिया वाकई हिल गई थी। वो अनाया से मोहब्बत के ख्वाब सजा रहा था, लेकिन उसने वहां आकर इसके ख्वाब छीन लिए थे। छोड़ो अनाया को, ये मेरी बीवी है। साइम की बात सुनकर सबा ने हैरत से उसकी जानिब देखा। बीवी? मेरे जाते ही दूसरी शादी कर ली?
तुम मुझसे मोहब्बत के दावेदार थे, फिर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो साइम? वो हैरान और परेशान दोनों थी। मैं कुछ भी कर सकता हूं सबा। तुमने मुझे छोड़ने से पहले एक बार भी सोचा था कि मैं और दाइम कैसे रहेंगे? तुम्हें यह बच्चा नहीं चाहिए था, मानता था, लेकिन तुम इसे यूं छोड़कर चली गई। हम इसके लिए केयर टेकर रख लेते। मैं कौन सा तुम्हें कह रहा था मेरा बच्चा पालो? वो जब्त होते सबा के रूबरू खड़ा आज सारे हिसाब किताब बराबर कर लेना चाहता था। मुझे तुमसे दूर जाना था, तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने जबरदस्ती इस बच्चे को जन्म दिलवाया। मैं इस बच्चे को दुनिया में नहीं लाना चाहती थी, लेकिन मैं वापस भी तो आ गई हूं ना। वो साइम के गालों पर हाथ रखते बोली, तुमने खत में साफ साफ लिखा था तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन तलाक भी लेना नहीं चाहती। तुम अपनी दुनिया में चली गई हो, वापस नहीं आओगी। फिर वापस क्यों आई हो? वो लहू रंग आंखों से उसे देखते पूछ रहा था। मुझे अपने बच्चे की तुम्हारी याद लम्हा लम्हा सताती थी साइम। मैं चली गई थी, लेकिन मुझे वहां जाकर अंदाजा हुआ तुम दोनों मेरे लिए कितने अहम हो। वो रोते हुए साइम के सीने से लग गई। अनाया रोती हुई अंदर चली गई। उसे मजीद देखा नहीं जा रहा था। मैं तुमसे मोहब्बत करना उस दिन से छोड़ चुका हूं सबा, जिस दिन मैंने अनाया से निकाह किया था। अब तो ये दिल भी उसका नाम लेता है। इसको बाकी सारे नाम भूल गए हैं। तुम मेरे करीब आई और मेरा दिल धड़का तक नहीं। अनाया को देख लूं तो सारा दिन दिल के साथ जहन भी फ्रेश रहता है। सबा, तुम मेरे दिल से निकल चुकी हो। बेहतरी इसी में है तलाक लेकर वहां चली जाओ जहां से आई हो, या यूं कहूं जिसकी पनाहों में इतने महीने रही हो वहीं चली जाओ। वो उसे दूर करते हुए अंदर चला गया, लेकिन सबा ने हिम्मत ना हारी। उसके घर में घुस गई थी और अपना मुकाम हासिल करने के लिए अनाया को भी निकालने का प्लान बना रही थी। वो जिसके लिए भागी थी वो कुछ दिन उसके साथ रहकर भाग निकला था। सबा अब ना इधर की रही थी ना उधर की। अगर तुमने मुझे तलाक दी तो मैं कोर्ट से अपना बच्चा ले लूंगी। वो हठधर्मी पर उतर आई थी। मैं तुम्हें तुम्हारा बच्चा दे दूंगा, बस तुम मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ। उसकी बात सुनकर अनाया जलजले की जद में आ गई और उसी रात अनाया दाइम को उठाए चुपके से घर से बाहर निकल गई थी। वो साइम को सबा को दे सकती थी, लेकिन दाइम को वो कैसे किसी के हवाले करने वाली नहीं थी। जब सबा को मालूम हुआ उसने साइम को बताया। वो पागलों की तरह अनाया को ढूंढ रहा था। सबा, मैं आज और इसी वक्त तुम्हें तलाक देता हूं। 3 दफा के कहे गए बोल ने सबा को उसकी जिंदगी से जुदा कर दिया था। अनाया बेवकूफ पता नहीं कहां थी। वो उसके पुराने घर गया तो अनाया और दाइम वहां मिल गए। साइम को देखकर उसने बच्चे को सीने में भेंच लिया। मैं दाइम नहीं दूंगी। पागल लड़की, मुझे मालूम था सबा कभी दाइम के लिए नहीं लौटी है। वो मेरी जिंदगी बर्बाद करने आई है, इसीलिए उसे कहा था दाइम को ले जाए, जो मां उसे पैदा करने के हक में नहीं थी। तुम्हें क्या लगता है वो इसे पाल सकती है? उसे पालने के लिए तुम्हारा जितना पागल होना जरूरी है। वो उसे अपने सीने से लगाए समझा रहा था। सबा का किस्सा हमारी जिंदगी से खत्म हो गया है। मैं उसे तलाक दे चुका हूं। अब तुम ही मेरी बीवी और सब कुछ हो। मेरे बेटे से इतनी मोहब्बत है कि अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे दी। उसकी बात सुनकर अनाया ने नजरें झुकाई। मैं तुम्हारे दिल का हाल जानता हूं और अपना बताता हूं। वो बोलते बोलते अनाया का चेहरा हाथों के प्याले में भर गया। हम घर चलें? वो रोते हुए पूछने लगी। बिल्कुल, मैं तुम्हें कभी भी अपने दिल और घर से निकालने का तसव्वुर नहीं कर सकता। पता है अनाया, तुम मेरी पहली मोहब्बत हो। मुझे अब समझ आया, सबा से मोहब्बत नहीं अट्रैक्शन थी, जो तुम्हारे आने के बाद बिल्कुल खत्म हो गई। लेकिन उसके आने के बाद मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारा ख्याल था। तुम मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, बल्कि तुम तो दाइम के बारे में सोच रही थी। वो उसके माथे पर मोहब्बत की मोहर सब्त करते पीछे हुआ और उसका हाथ थामे घर ले आया। उसने कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स फाड़ कर अनाया को थमाए। अगर आपको हमारी कहानी ये हमारे दरमियान से खत्म हो चुका है। चैनल को लाइक करें, हम अपनी जिंदगी पूरी सच्चाई और दयानतदारी से शुरू करेंगे। ताकि वो अनाया का चेहरा ऊपर उठाए बोला। दाइम दोनों को देखते ताली बजा रहा था। तुम्हारे दिल में मेरे अलावा कोई है?
साइम के सवाल पर अनाया ने नफी में सर हिलाया। क्या मेरे साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहती हो? उसका जवाब असबात में आया। दाइम से ज्यादा मुझे मोहब्बत दोगी? उसके सवाल पर अनाया ने झटके से सर उठाया। नहीं, उसने खफा होते कहा। क्यों? पहले बाप का हक है, फिर बेटे का। वो घूरते हुए बोला। अच्छा, इसको जल्दी से सुलाओ, मैं चेंज करके आता हूं, फिर बताता हूं मेरा हक कैसे ज्यादा है। वो बोला तो अनाया ने दाइम को उठाया और भागते हुए दाइम के कमरे में बंद हो गई। बाहर साइम गुस्से से अनाया अनाया चीख रहा था। अनाया और दाइम खिलखिलाकर हंस रहे थे। उनकी खिलखिलाहट सुनकर साइम भी मुस्कुराने लगा। तुम मुझसे बच नहीं सकती अनाया, इतनी दूरी काफी थी। अनाया ने शर्मीली सी मुस्कुराहट के साथ दरवाजा खोल दिया। वो दोनों को बाजू में भरे हंसने लगा और जिंदगी इस मुकम्मल फैमिली को देखकर गुनगुनाने लगी।